Good evening, everyone. So, as you all know, Code Club JSL was inactive for last few years, and so we are trying something new. Uh, so, presenting you silly yet brainy AI universe, uh, episode one, Introduction to Gen AI. So, let's have a little warm up chat. On a scale of 1 to 5, how would you rate yourself in AI concepts? You can text it in the chat box. Nice. Minus. Nice. Okay, -1. और it's not. अच्छा. Pretty interesting comments, I think. Lots of honest answer, I think. Yeah. Unfiltered आदमी लोग आ गया है. चलो, शुरू करते It's good. This session is for you all. हैं. Okay, so today we'll start with the basics. An introduction on what's AI agent for and what generative AI is mainly. So, this is our members of the team. We have Brahmaji Treta, very helpful, well cleared in AI concepts. We also have Diponda. So Diponda is also very helpful. You can call him and he would clear any ML related concepts. And this is me, myself, Sharnendu Banerjee. अब खुद की तारीफ क्या ही करूं? कोई बात नहीं. So I would like to call Daniel and Shorbo to introduce yourself. Hi, I'm Daniel Anis. I'm an expert in code forces and I'm upcoming intern at DShaw. Hello everyone, I am Shorpo and I am an ML enthusiast. I've also worked on a research publication at JU in the field of ML. I also have a lot of side projects dealing with ML and RAG. Highly talented आदमी लोग बैठे हैं. चलो. So what's our plan is that we will go like this. Our series will be like this. Introduction to Gen AI, today's class. And if you like our session, we would move to vector database and the various things, RAG, fast API basics, LangChain, alternatives. The next framework, agentic frameworks. My favorite one, Crew AI, and then multi-agent projects. Yeah. अरे पेशेंस रखो भाई, पेशेंस. सब प्रीरिक्विजिट सब मिलेगा तुमको, चिंता क्या, सब मिलेगा. And again, the last and most important thing, we would end the whole plan with front-end integration and deployment. So मुझे पता है PPT तो boring ही लगने वाला. So this is our goal. Our goal is to give you a clear understanding of how Gen AI pipeline would function, and it includes various stages. We would also cover deployment, showing that AI can be integrated into an application system. By the end, participation will have a full life cycle of Gen AI projects in action. अब पता है मुझे हाफ ऑफ द पब्लिक तो यही पे गिव अप कर देगी, ये कौन पढ़ेगा. तो इसलिए तुम्हारे लिए ये लिखा हो भाई, पढ़ लेना. सिंपल भाषा में इस सीरीज के खत्म होते रहते तुम्हारा एक प्रोजेक्ट रेडी हो जाए. सो या शुरू करते हैं. दिन भर तो पढ़ाई कर ही लेते हैं, थोड़ा एक कहानी बताता हूँ. चलो, एआई एक प्रेम कथा. तो ये पढ़ लेना, ये तुम लोग के लिए है. मैं बता देता हूँ जिस्ट क्या है. सो ये बात है एक लड़का और लड़की की. लड़के का नाम एज यूजुअल रामलाल, लड़की पोगो. तो रामलाल ने पोगो को देखा है कैंटीन में फर्स्ट ईयर में फर्स्ट टाइम, और वो बस दिल गार्डन हो गया उसका. अब वो वही सोच रहा है इसको कैसे इम्प्रेस करे. तो रामलाल ने शुरू किया अपने क्रिकेट स्किल्स दिखा के, उसके सामने मैथ सॉल्व करके, फ्लेक्स थोड़ा करके. पोगो भी दूसरी उसकी तरह निकली. क्या ही क्या, जिंदगी में बहुत दुख. उसने भी कहा अच्छा हाँ, पर मैंने बेटर देखा है. रामलाल ने गिव अप नहीं किया अभी तक. रामलाल ने ध्यान से देखा पोगो को क्या क्या पसंद है, नोटिस किया, लर्न किया उसके बारे में. धीरे धीरे उसके सामने उसका हमने अप्रोच को एडजस्ट किया, उसकी फेवरेट थिंग्स बताना शुरू किया, परफेक्ट टाइम में पर्न्स क्रैक किया. ठीक है, रामलाल यहीं पे नहीं रुका, रामलाल भी थोड़ा ही छोड़ेगा उसको. सटल क्यूज नोटिस किया कि स्माइल कौन से मीम पे वो रिएक्ट करती है. इंस्टा स्टॉक आजकल तो सभी यही कुछ है. लाइब्रेरी के पास वो कितना टाइम बिताती है, ये सब ऑब्जर्व करके रामलाल ने केयरफुल एक प्लानिंग सोचा. रामलाल ने क्या किया,
एक मीम बनाया, तो मीम कॉमा सॉन्ग जैसे होता है, एक जीआईएफ टाइप ऐसा कुछ बनाया और पोगो के ऑब्सेशंस पर। बस पोगो को वह फंस गई, पोगो पोगो हंसने लगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करने लगी, और रामलाल को पता चल गया कि हंसी तो फंसी। अब एट दिस मोमेंट मुझे लग रहा है 50% जनता तो सोच रही है क्या बेकार स्टोरी है यार, और 50% जनता तो खुद को इमेजिन ही कर लिया होगा। चलो दूसरे 50% के लिए कोई क्यू आ गया अभी, जस्ट सेकंड ये कंप्लीट कर लेता हूँ फिर तुम बोलना। खुद खुद को तो इमेजिन कर लिया होगा, पर यार कोई बात नहीं, जिंदगी में पोगो की कमी मुझे भी सताती है। चलो बैक टू द टॉपिक, मेरा मोटिव यही था, यही है एआई। जो तुम लोग बोलते ना एआई क्या है, एमएल अलग क्या है, डीएल अलग क्या है, एआई क्या है, रिलेटेबल तो है भाई, इसलिए तो लिखा जो भी है। रामलाल हिमसेल्फ इज एआई ऑलराउंडर, ही इज डूइंग एवरीथिंग ना। और मशीन लर्निंग है वो लर्निंग हैबिट्स, इज लर्निंग अबाउट पोगोस एट्रीब्यूट फीचर्स एंड जो जो पसंद है उसके ऑप्शंस। डीप लर्निंग और रिसर्च करना उसके बारे में, क्या क्या डेप्थ रिसर्च जो होता है। और जेनेटिव एआई होता है वो क्रिएटिव आइडिया, जो मीम सॉन्ग बनाया है उसने क्रिएटिव आइडिया करके उसको इम्प्रेस करने का तरीका होता है जेन एआई। सो आई वुड लाइक डैनियल टू एक्सप्लेन दिस वन। ये तो टेक्निकलिटी का है, तो डैनियल कैन यू प्लीज? Okay, so what is AI? You can think of it as the computer science field. So it is a massive and overarching goal to make a computer things like human and perform tasks in its own and make decisions for us so that our life becomes somewhat easier. So inside this is a specialization called ML. ML is a like an approach on how you teach a computer to make a decisions on based on some data or inputs. So for ML, what you do instead of writing millions of lines of if else code or if then rules, you feed thousands of millions of petabytes of data and make it learn some pattern. And this is like you can think it as memorizing a formula and deriving it by looking at thousands of example. So with ML, you are looking at thousands of examples and deriving some kind of formula through it. Like you can make some kind of formula like after you see some test cases on Codeforces and all, you can think of it like that. And if we go deeper, we have deep learning. So this is a very specialized type of machine learning. We use some kind of structure called neural networks. It is inspired by the human brains itself. So what they do is a very condensed layer of neural networks. That's why it's called deep. And you feed a huge data set into it, and this model learns some kind of complex pattern through it. Like you can't make some kind of formula to interpolate that this the output can be interpolated by using some kind of simpler formula. So you feed a humongous data set into the model and it tries to find some kind of complex pattern. So this is the magic you see like Spotify creating a weekly playlist that like is curated to you. And then there is Gen AI, the star of the show. This model learns from the data you feed in and tries to create an original and new data. Like this is your ChatGPT writing code for you, Midjourney creating images, and like Google models creating some kind of music. So I would like Sonendu to या slide. टेक्निकली टर्म्स आते आते हाफ ऑफ द पब्लिक का इंटरेस्ट ही चल जाता है यार। थैंक भाई, अस अस लो यो नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा रिसोर्सेज देख लो यार। अच्छा कोई पूछा था कि प्री रिक्विजिट क्या चाहिए, मैं बताता हूँ। मैंने कुछ नहीं सीखा था, डायरेक्ट शुरू किया था। जो बोलते हैं कुछ some people often give you advice that you should know maths to a decent level. I believe जेई के टाइम तो बहुत कुछ पढ़ते ना, उतना इनफ है, उतना तुम्हारा नॉलेज हो जाएगा। जेई के टाइम का जो सिलेबस है उतना अगर याद है ढंग से तो वो मैथ्स ही काम में लगता है। बाकी मुझे नहीं लगा यार, मैं सच बोल रहा हूँ। तो प्री रिक्विजिट वैसा कुछ खास नहीं। पाइथन वो बाद में बताऊंगा क्या लैंग्वेज का पाइथन होना जरूरी। तो ठीक है देख लो, कोर एमएल एंड डीएल रिसोर्सेज, दिस इज वेयर
I have learned from personally from this Krishnayak and StatQuest. I literally call them God. They are God. Krishnayak is very helpful. So we have attached the video. You could find. Yeah, who is ready? Best teacher Krishna. अरे यार पता है मुझे. क्या अनिंदर सुंदर कुछ कहना चाहते हैं? Yes, sir. Sir, I wanted to say सर that. नहीं सर मत बोल यार भैया. अच्छा. हाँ, क्या ये तो बुक्स है कि कृष्णायक एंड स्टार्टक्वेस्ट एक ये बुक्स है? मैंने बुक्स नहीं है, चिंता मत कर. बुक मैं भी नहीं पढ़ता, ये यूट्यूब प्लेलिस्ट है. अच्छा, यूट्यूब प्लेलिस्ट है. चिंता मत करो यार, बुक्स तो कौन ही पढ़ता है आज के टाइम. हाँ कुछ हो गया, सॉरी टू ऑफेंड कुछ पीपल. जब भी हो, कृष्णा इज माय पर्सनल फेवरेट. तो इसका जो प्लेलिस्ट है एमएल और डीएल का, वो बहुत ही हेल्पफुल है. ठीक है, अब यहाँ कुछ पब्लिक एसेट्स हो यार, जेएनएम एमएल डीएल का क्यों बता दे रहा हूँ. कुछ लोग तो फिर से व्हाट्सएप करने ही वाला है, कोर एमएल का क्या करूँ, पहले बता दे रहा हूँ. ठीक है, जो भी हो. So Chris Naik's playlist are also there. 3 blue, 1 brown. One of the greatest mathematicians. You can see his visualization is great. Campus is again very good content, extremely quality content. जो भी है उसका वो प्रोजेक्ट शायद कोड करते करते सिखाता है, और बेहतर है. वो कुछ कॉन्सेप्ट समझाता है फिर कोड करता है फिर से. और फिर StatQuest अगेन, कोई चीज अगर तुमको 10 मिनट में समझना है तो इसका वीडियो विजुअलाइज करके समझाया. ठीक है, तो जो भी हो. नेक्स्ट रिसोर्स जेन आया क्या है, ये वाला आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट डैनियल टू एक्सप्लेन द फर्स्ट रिसोर्स स्पेशली. So ये पहला वाला कोर्स है कि बेसिक व्हाट इज एलएलएम, लाइक हाउ व्हाट इज सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, क्या हेलुसिनेशंस होता है, हाउ कैन यू लाइक फाइन ट्यून द पैरामीटर्स इन एन एलएलएम टू गेट अ डिजायर्ड आउटपुट. सो ये 1 घंटे का कोर्स है, बेसिक्स कवर करता है. सो लाइक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड ऑल. सो ये अच्छा है. तो मैंने भी इधर से शुरू करा था जेएनएआई स्टफ. अच्छा, बाकी का 2 से तो मैंने पढ़ा था. कृष्णा एक से आगे नहीं, मतलब वो सब कुछ है यार. कृष्णा की एवरीथिंग है. और कोड बेसिक्स भी अच्छा प्लेलिस्ट है, पढ़ के देखना. यहाँ पे लिंक दिया हुआ है. अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द रेफरेंस ऑफ दिस मीम? ये +1 इन द चैट. नाइस नाइस नाइस. तो इंस्टाग्राम चलाने वाले आदमी हैं. नाइस, +2. नाइस नाइस नाइस. जो कंटिन्यू करते हैं. नेक्स्ट +3. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं. जो एक सेकेंड. हाँ, अब मोमेंट ऑफ ट्रूथ. हम देखो ये चीज मैक्सिमम लोग करता है. ऑफन दे इग्नोर एमएल एंड डीएल कॉन्सेप्ट एंड डायरेक्टली मूव टू जेएनए. ठीक है, ये नहीं करना है. ठीक है, यू कांट इग्नोर एमएल, जैसे उसने तुम्हारा मैसेज इग्नोर किया था. ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते, बुरा लगेगा. पर कोई बात नहीं है, हम लोग चीज को इजी कर लेंगे. फर्स्ट स्टेप इज कुछ बेसिक्स पता कर लो, कुछ वीडियोस देख लो कि क्या होता है सुपरवाइज मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज क्या होता है, रेनफोर्समेंट क्या होता है. सिर्फ बेसिक्स देख लो क्या होता है, क्या क्या एमएल राइट ऑफ पानी. ठीक है, कुछ बेसिक्स देख लो. जैसे एमएल मॉडल, वो कृष्णा का प्लेलिस्ट थोड़ा बहुत देख लेना. तुमको करना ही नहीं कोड, वो चाहते तो कर सकते हो, तुम्हारा पर्सनल ओपिनियन मैटर करता है. सेकंड चीज है इम्प्लीमेंट करते करते सीखना. कोई भी प्रोजेक्ट डायरेक्टली बना रहे हो तो प्रोजेक्ट में अगर कोई तुम कुछ नया कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो कोड देख के लिखो ना. मतलब देखो, समझो, लिखो, अप्लाई करो. समझो, मतलब समझना है, देखना है, समझना है और इम्प्लीमेंट करना है. हर दुनिया में सबको सब कुछ नहीं पता होता. ठीक है, तो जो बोल रहा है वो तो छोड़िए, इसको सब कुछ आप आएगा. अंडरवर्ल्ड जो भी व्हाट्स एन एआई एजेंट. So I would like to call Daniel to explain again. Okay, so AI agent यहाँ पे buzzword है. So it's very technical, but I'll promise I'll keep it very straightforward. So you think of your exam group, so high press study group. Imagine 5 people. Ramesh, there is Ramesh who is a DSA god. You can say expert in code forces kind math. So if you get some kind of data structures problem, he will be able to solve. But if you ask some problem based on computer networks or SQL, and you'll get a blank stare from it. Then there's Sita,
who is an OS geek, knows everything about how CPU scheduling works and all. But if you ask her how DBMS works or how you can write an SQL query, she'll give you a blank stare. Then there is Amit. Amit knows DBMS. So if you like give him like some kind of query like, do you have notes for this subject and all, he will return to you the PDF of those notes. And there's Priya. She's the social media networking queen. So she knows what is TCP, ICP, what is ARP protocol and all. And there's like Ramesh, who is an AI ML enthusiast. And all these people collaborate together during the exam season to. Hello. Yeah, Daniel Katat. Yeah. Hello. हाँ Hello. हाँ बता बता कंटिन्यू 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 So, and finally, so सो ये लोग सब मिल के एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि तुम स्टडी कर सकते हो और फिर डिसीजन बना के कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है कौन सा नहीं आ सकता है PYQ पढ़ के एंड क्वेश्चन एक दूसरे का क्वेश्चन आंसर करते हैं. सो बेसिकली AI एजेंट क्या करता है वो ऑब्जर्व करता है एनवायरनमेंट को प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन एंड डिसीजन बनाता है एंड बेस्ड ऑन दोस डिसीजन इट एग्जीक्यूट्स द एक्शन टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल. नेक्स्ट अच्छा प्लीज. हाँ वेट वेट अ सेकंड. तो मैं एक रिलेटेबल स्टोरी बता देता हूँ इसमें. जब सीटी का सेशन मतलब सीटी जब आता है सीटी वीक तो ऐसा तुम लोग कभी किए हो क्या मतलब किसी तुम्हारे किसी दोस्त को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट बहुत बेहतर आता है तो तुम उसके ऊपर डिपेंड होकर चले गए. अब कोई लिखना मत कि एक भी सब्जेक्ट नहीं आता. ठीक है. तो ऐसा होता है ना कि इसको मेरे दोस्त को आता है राहुल को आता है सोच लो मेरे दोस्त राहुल को आता है सब कुछ आता है उसको. तो दोस्त तो जीपीटी सही है. तो हाँ यही तो प्लानिंग भी हो गया नेक्स्ट सिटी का. यही बात है कि वही तुम लोग जो सिस्टम कर रहे हो अपने दोस्तों में कि तू ये पढ़ लेना तेरे ऊपर मतलब आसपास में बैठेंगे डिस्कस कर लेंगे आंसर लिख लेंगे. जो तुम्हारा जो दोस्त सर्कल है वो एक एआई एजेंट का सिस्टम है. सब लोग स्पेसिफिक टास्क में अपना काम करते हो. हाँ हाँ भाई फाड़ देना भाई वही तो करना है सिस्टम फाड़ ही देना. तो वही सब यही है तुम्हारा जो दोस्त का सर्कल वो एक एआई एजेंट का सिस्टम है. और जो तुम लोग पढ़े हो खुद से एक एक टास्क इंडिविजुअली एस किए हो तो वो इंडिविजुअल एआई एजेंट्स है. बस यही सिंपल लैंग्वेज में. नेक्स्ट पेज या डैनियल कंटिन्यू. Okay, so how these agents work is they have some kind of component inside them. So I'll break down the anatomy, and these are the 5 components. There's perception, the eyes. So the agent needs some kind of input from the world to act upon it. It's something like you call Siri through your voice. So that's the input. So that's the sensors, and this is the perception. After that is reasoning and decision making. That's the brain of the AI agent. There is the LLM. So it takes the input from the eyes and all and decides what to do. Like if it sees a player playing a game, so if they have a low health, it decides to attack the opponent and all. Then there is action and tooling. So these are the muscle of an LLM, like the tools they will use to achieve the task after they have decided what to do. In this example, the agent will use a gun or weapon to attack the opponent. And it is similar to like if you call Alexa and all, it will call the Spotify API to play some kind of song and all. So based on this, I'll ask a question to you. Let's think about a delivery app like Zomato or Swiggy. When it sends you a notification saying it's raining Harvard coffee, what component is that? Is it like perception, reasoning, or action? Type in the chat, please. आवाज आ रहा है ना? हाँ हाँ आवाज तो आ रहा है. कॉफी सुन के सब लोग तो नींद में हो गए सर. टेक्निकल टर्म्स किसी को पसंद नहीं है. सब स्विगी खोल के बैठे. स्विगी तो खोल लिया. कोई बताओ यार कुछ भी लिख दो यार.
कुछ भी क्वेश्चन मतलब कैसे बोलूं? परसेप्शन कौन जीपीटी मार सौरभ वो हो परसेप्शन बता डैनियल सही है इंटरेस्टिंग में से कुछ नहीं है तीन में क्या so perception is like you are getting data that if it is raining in your location, and then reasoning is decided like what kind of pattern you have during rains and all, how what orders you book, and how coffee matches the environment. Then it sends a notification, that is the action to your phone. So the next two are memory. So this is how the agent gets smarter and all. So if you dismiss the Zomato's coffee recommendation, it might learn that you don't like drinking coffee during rain, or if, and it will try to suggest something else. So it adapts. After that, there's communication, the voice. So how the agent outputs its data, like through Zomato, if you are giving an order, it will communicate to the restaurant system and the delivery partner. So with that, it will collaborate with other agents and all. So there you have it: eyes, brains, muscle memory, and the voice of a AI agent. So I'd like Sorbo to explain the next part. जस्ट a second सौरभ वेट अ सेकंड अच्छा मैक्सिमम लोग को तो बोरिंग ही लग गया होगा टेक्निकल टर्म सिंपल भाषा में बता दे रहा हूँ ये तुम्हारा दोस्त है ठीक है कैसा दोस्त है परसेप्शन आइस जितना घटिया नजर है तो तुम दोस्त का तो घटिया ही नजर होता है पर क्या है यार वो जो देखता है वही उसको लगता है ना सही है बस यही परसेप्शन है रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग हम लोग सबके पास एक ऐसा दोस्त होता है जो ऐसा कुछ रीजनिंग और डिसीजन लेता है जो लगता है यार ये इसी दुनिया का है ना तो क्या करे अपना दोस्ती वही जस्ट अ ह्यूमन बीइंग ये कोई बोल रहे राहुल ठीक है फिर एक्शन एंड टूल कॉलिंग बर्थडे बम दिया ना वही है एक्शन एंड टूल कॉलिंग उसका डिसीजन के ऊपर जब गुस्सा आता है तो लगता है ना यार दे दो जो भी हो फिर लर्निंग मेमोरी तुम्हारा सिर्फ एक दोस्त ऐसा नहीं है बाकी सारा दोस्त भी है तो जब एक पिटता है ना तो बाकी सबको सही से अकल आ जाता है तो दैट्स व्हाट मेमोरी डू ठीक है फिर वॉइस वही तो कम्युनिकेट वो तो बोलेगा सब गलत ही बोलता है वो हमेशा बस यही है तुम्हारा दोस्त ही है कि एजेंट ही है चलो आई वुड लाइक टू कॉल शॉर्वो फॉर द नेक्स्ट Yes, so after the very relatable components of the AI system, we now move on to how agents work. This slide is for reference. It shows the general steps that AI agents follow, from taking human goals, gathering data, making a plan, acting on it, and then learning from the results. This loop continues with feedback and refinement. So instead of reading through all of this, I'll focus on the diagram in the next slide, which captures the same idea more visually and concretely. If we move on to the next slide. Yeah. Yes, so here we have the agent itself. This is the brain of the system. It has a memory, both short-term, like working memory for immediate tasks, and long-term for retaining knowledge over time. This memory is used to recall past experiences and guide current actions. We then have the LLM component. The agent uses an LLM or a large language model as the reasoning core. This LLM pulls information from memory, understands the goal, and generates a plan of action. We next have the objective planning action flow. The goal or objective. Just a second. Okay. Can you please repeat previous slide once? Repeat मतलब क्या? I did not go through the previous slide in details because it was mostly textual. I'll rather focus on the next slide because it covers a lot of things visually, so it will be easier for comprehension by most participants. Is that fine? Yeah. Okay. So we पढ़ा है नहीं भाई वो तुम्हारे रेफरेंस के लिए वो तुम लोग पढ़ लेना. Yes, I'll keep that for reference for the participants. They can read it on their own. So we move on to the objective planning action flow. The goal or objective directs the LLM. Based on the objective, it creates a plan and then moves to action. Action means performing tasks in the outside world. We also have a tools block on the right. To act, agents use different tools. For instance, chat tools for communication, machines or robots for physical actions, APIs for connecting to software, and crawlers for exploring and gathering data from the web. At the bottom, we also have an environment block. These actions affects the environment, which could be a computer, a game, a code, simulation, or the real world. The environment gives back feedback and reports, telling the agent how well it performed.
We again move back to the feedback loop at the top. Agent observes results, rethinks strategies, and feeds that learning into memory. This continuous feedback loop makes the agent smarter over time, more efficient, and more accurate, and it aligns well with the goals. So while the textbook slides gave us the steps, this diagram shows us how those steps connect in practice. So agents take in objectives, reason with memory and LLMs, act through tools, interact with environments, and improve through feedback loops. This cycle is what gives them adaptability and intelligence. So if there are no questions on this part, we could move to the next topic. Yeah, okay. Just a second. Flex, एक project flex कर लेते हैं. काम करेगा कि नहीं देख लेते हैं. रुको. I'll just stop sharing once. So wait a second. स्क्रीन दिख रहा है यार? हाँ भैया दिख रहा है. हाँ, तो तुम लोग ये एक रैक सिस्टम फॉर एग्जांपल हम लोग बनाए, ठीक है. तो कुछ ट्राई करते हैं, यूनिक ट्राई करते हैं. और चलो पीडीएफ जो क्या देख लेते हैं क्या मिलता है. टाइम ब्राउज कर लेता हूँ. कुछ डीबीएमएस का कुछ है. डीबीएमएस असाइनमेंट 1 नहीं, डीबीएमएस का नहीं है. सॉफ्टवेयर 1.6 का कुछ है. असाइनमेंट 1 ये काम करेगा. एक्सपेक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं. हो भी गया. हाँ, तो असल में ये जो है ना, मेरा एक असाइनमेंट था, मेरा रोल नंबर 16, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लैब का, ठीक है. तो वही मैंने अपलोड किया और एलएलएम ने उसको रीड किया. उसके बेसिस में मुझे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि ऑन द क्वेश्चन कि व्हाट इज द स्पेशल फोकस ऑन जेएनई प्रोग्राम. और ये तो चलो कुछ पूछते हैं. सजेस्ट मी सम कोड्स. ओके, हाँ, तो ये तो क्वेश्चन है, तो इसमें तो नहीं मिलेगा. सो और कुछ देखते हैं. ये एक है, तुम ये भी हाइपर लिंक भी दे सकते हो. फॉर एग्जांपल लिंक में जाता हूँ तो कोई एक एडशरेन का मिलता है. ये लिंक आता है, इसको यहाँ देखता हूँ. दिख रहा है ना, स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? हाँ भैया. हाँ दिख रहा है. प्रोसेसिंग के लिए टाइम लगेगा. जादवपुर के पास बजट भी नहीं है एलएलएम की. क्या घटिया कॉलेज. पैसा तो एक्सेल लोड ही हाँ हो गया. हाँ देखो, वो एड शेरन का विकिपीडिया का लिंक था, अपलोड किया था. तो वो बता रहा है कि दिस लिंक इज अवार्ड एड शेरन एंड मिसलिंग. अबाउट हाँ, तो विकिपीडिया में मेंशन था कि कौन से इस साल में मिला था उसको, क्या रिलीज हुआ था, ये सब. तो दिस इज समथिंग कॉल्ड रैग, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, जो तुम लोग विद टाइम बनाना सीखोगे. हम लोग भी सिखाएंगे. एक प्रोजेक्ट तो बनाना है, प्रॉमिस है. तो जस्ट एक सेकंड, मुझे फिर से शेयर करना पड़ेगा. अरे मिलता सब बताए. जस्ट हैंग कर गया. हाँ प्रेजेंट होगा. यही तक देखे थे ना हम लोग लास्ट में. हाँ यही तो हो. चलो हाँ, अच्छा एक होमवर्क है. आई वुड लाइक टू कॉल Saurabh to explain this. Yes, so we have a homework lined up for you.
This is a task before we reach the final slides. Your homework is to call the Hugging Face Inference API using Python. Now, don't worry if you haven't done something like this before. The steps here are quite clear. We start with setting up a project folder, creating a Python script, and setting up a virtual environment, which is very important. And then we install dependencies. Most of you will be able to figure this out on your own. The main part here is to get your Hugging Face API key and write a simple script that sends a request to a model and prints the response. It is a great way to see an example of Gen AI working through code. Once your script is running, you can validate your output by pasting pasting your output on the link that is given over here. The link is llmresponsevalidator.vercel.app. So you'll get to know whether your response is correct or not on the fly. ओके, नेक्स्ट पे जाते हैं. अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, सुन लो यार. फर्स्ट एंड मोस्ट थिंग कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स. ठीक है, मुझे कुछ लोग मैसेज किया था, भैया ये क्लास में ट्रांसफॉर्मर सबको आ जाता है, तो मैं क्या पीछे रह गया. मैं बोला यार देखो, मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, जिससे तुम जल रहे हो या फिर जिससे तुमको दिक्कत हो रहा है, क्या वो मतलब तुम उसको पहले से जानते थे? उस कॉलेज में आने से पहले से इतना अच्छा दोस्त है तुम्हारा, है नहीं ना? 4 साल बाद निकल जाओगे कॉलेज से, वो फोन भी नहीं करे, तो तुम खुद अपना देख लो ना, सबसे बेहतर है. नेक्स्ट इज दैट एमएल अपना काम अकेला नहीं कर पाएगा. एमएल अलोन वोंट डू द मैजिक. एमएल के साथ डीएसए का ग्रिप होना प्लस पॉइंट है, सच बोल रहा हूँ. क्योंकि विद टाइम जब जेएनए फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करोगे, तब वो लिंक लिस्ट, ग्राफ, ट्रीज, क्या क्या होता है, मतलब विद टाइम जब हम लोग लैंड ग्राफ में जाएंगे, उसमें क्या होता है ना, एक नोड में एक एजेंट होता है, तो वो तुमको पता होना चाहिए ट्री का क्या नोड है, वो ग्राफ का क्या नोड है. ठीक है, ये सब पता होना एक प्लस पॉइंट है. अच्छा, हैव यूनिक प्रोजेक्ट्स. अपने यूनिक प्रोजेक्ट बनाना एक प्लस पॉइंट है. ठीक है, आजकल जो चल रहा है कि एक वेब डेव प्रोजेक्ट की एपीआई के लिए इसको कोई एक चैटबॉट बना दिया, हो गया जेएनए. सिर्फ जेएनए उतना तक नहीं है, ठीक है, उससे भी बेहतर है. तो ट्राई टू इंटीग्रेट स्टफ्स लाइक एआई, वेब 2, एआई, वेब 3, तीनों मिला के करो, जो करना है करो, बट यूनिक बनाने की कोशिश करो. ठीक है, कोड योर ओन स्टफ. गिटहब से किसी का गिटहब में लगा कि ये प्रोजेक्ट सही है यार, पूरा कॉपी पेस्ट कर दिए, नहीं, ये सब नहीं करना. ठीक है, जो भी कोड करोगे समझ के करना है, क्योंकि फ्यूचर में जब इंटरव्यू में तुम पूछेगा प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन, तुमको आना चाहिए उसके पीछे का लॉजिक, क्यों इम्प्लीमेंट किया, ऐसा क्या है इस कोड में. हाँ, ये हो सकता है कि आइडियाज कॉमन हो. हाँ, कि वही तो अमेजोन आया, फ्लिपकार्ट नहीं आया क्या, फिर भी दोनों का आइडिया तो कॉमन ही था थोड़ा बहुत. तो वही कोड तुम्हें लिखना है, तुमको सोच के तुम्हारा लॉजिक समझ के लिखना है. ठीक है, एंड अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई बिलीव, दिस लाइफ आउटसाइड स्टडीज मैटर. मैंने देखा है मैक्सिमम लोग कोड करने बैठ जाते स्क्रीन के सामने 7 घंटा 8 घंटा. यार कैसे रह लो, तो मुझे तो नहीं पता. ये हमें उलझे मत रहो यार, सिंपल बात है. लाइफ के मजे भी लेना है. ठीक है, ये टाइम वापस नहीं आएगा, सच बता रहा हूँ सबको. जिसको लग रहा है कि गूगल में मारेंगे, पैकेज मारेंगे, या फिर 1 CR का पैकेज मारेंगे, मस्ती, नहीं है भाई. वो 1 CR का पैकेज दे रहा है तो तुमको 1 CR जैसा काम भी करवाएगा, तो वैसा हालत होगा. ठीक है, तो हाँ, एंजॉय करते करते करना है. हम लोग फोड़ेंगे यार, जरूर फोड़ेंगे. एंड फाइनली चलो, आज का सेशन इतना ही था, बेसिक्स था. नेक्स्ट सेशन से हम लोग कोडिंग का थोड़ा शुरू करेंगे, वेक्टर डेटाबेस का सेशन होगा. अगर तुम लोग को अच्छा लगा वो सेशन तो देखते हैं. कोड क्लब तो बन गया, रिसोर्सेज भी दे दिया, इतना एक्चुअल पढ़ाई तुम लोग कर लेते हो, देखते हैं. चलो, किसी को कोई डाउट है तो अभी बोल सकता है. मैं कौन हाँ, हेलो, स्टार्ट कहाँ से करें? तो गुड क्वेश्चन. मैंने आउट ऑफ द ब्लू स्टार्ट किया था एमएल, जस्ट एक वीडियो देख लिया था. ठीक है, वैसे कर लिया था स्टार्ट. कुछ स्टार्ट नहीं करना है, मैंने बताया तो. एमएल का बेसिक्स देख लो, क्या होता है एमएल, क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, क्यों करते हैं ऐसा, क्या एमएल और डेव में डिफरेंस क्या है, क्या ही डिफरेंस है ऐसा, क्यों इसका ये ज्यादा लोग अभी प्रेफर करते करना. फिर इसका मतलब सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, अनसुपरवाइज क्या होता है, यूट्यूब में मिल जाएगा, ढेर सारा कंटेंट है फ्री में. ठीक है, ये सब बेसिक्स देख लो. अच्छा, प्री रिक्विजिट कोई पूछा था स्टार्टिंग में. प्री रिक्विजिट मैं सिर्फ एक ही डिमांड करूंगा, पाइथन बेसिक्स. यही सीखना, पाइथन बेसिक्स सीख के रखना भाई. पाइथन बेसिक्स इज इम्पोर्टेंट. पाइथन NumPy ये सब नहीं चाहिए होगा? अरे नहीं यार, ये जो बोलता है कि मुझे NumPy आता है, ये आता है, वो उसको देना क्वेश्चन, वो नहीं बनेगा. वो विद टाइम तुम करोगे ना, जब कोड करना स्टार्ट करोगे विद टाइम वो आ जाएगा. हम लोगों को भी मैक्सिमम जो उनको नहीं पता NumPy का मैक्सिमम फंक्शन, वो हम लोग कोड करने टाइम देख लेते हैं यार.
वो उतना इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है। तुमको लॉजिक अंडरस्टैंड आना चाहिए, पूरा प्रॉपरली आना चाहिए कि ये एजेंट क्या करता है, एजेंट का अंदर क्या होता है, इसका क्या कोड बेस, कौन सा एलएलएम है, ये एलएलएम क्यों मैंने चूज किया है, बस ये सब आना चाहिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। और किसी को कोई क्वेश्चन? भैया मेरा सी कोडिंग है, मतलब मैंने सी कोडिंग किया है, पाइथन नहीं किया, तो फिर क्या होगा? अरे क्यों नहीं होगा यार, ये कौन सा है, मैंने ऐसे ऐसे आदमी को देखा जिसको कोडिंग नहीं आता, वो बहुत अच्छा मतलब करता है। मैं पाइथन नहीं जानता, मैं पूछ रहा था कि तो मुझे ये सीख पाइथन लो सीखना यार, पड़ेगा? सीखना कितना टाइम लगता है, सी में एमएल तुम चैलेंज कर रहे हैं, यूट्यूबर गुस्सा हो जाएगा। सी आता है तो पाइथन सीखना बहुत आसान होगा। हाँ, सी अगर अच्छे से आता है तो बोल रहे हैं, पाइथन सीखना बहुत ही ईजी है। ओके। और किसी को कोई डाउट? तो भैया वो सब थोड़ा बहुत वो कॉमन एल्गोरिथम्स वो सब थोड़ा देखा था, वो लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक, रैंडम फॉरेस्ट, KNN SVM, वो सब। तो हाँ, बहुत देख लिया यार तुमने। वो ज्यादा देख इवैल्यूएशन मैट्रिक्स क्या मतलब कहाँ से प्लेलिस्ट कुछ फॉलो कर, मतलब जो दिए वही वही लिया। सब अरे playlist? वो मैं जो दिया वहां पे लिंक है, ठीक है, जो मैंने तो शेयर किया था यार, रुको एक सेकंड। हाँ, वो स्लाइड भेज देंगे ना? हाँ हाँ, वो आराम से मिलेगा, रुको एक सेकंड, मैं बता रहा हूँ। ये जो था ना पीछे, ये हाइपर लिंक क्लिक करोगे तो यूट्यूब प्लेलिस्ट खुल जाएगा, पूरा है यहाँ पे, ये खुल जाएगा, फिर चेन्नई का भी खुल जाएगा, ये भी खुल जाएगा, चैट क्वेस्ट का तो पूरा प्लेलिस्ट ही है, ये जो चेन्नई का ये पार्ट। वो बस कैंपस से सब 3, 2, 1 ही सुना था, बाकी तो नया नया सुन रहा हूँ। और नहीं, कैंपस एक्स भी एक सुनो, मेरा बात ये है, 10 रिसोर्सेज फॉलो करने से बेहतर एक रिसोर्सेज 10 बार करना, ठीक है? क्योंकि मैंने कृष्ण नायक का वीडियो से स्टार्ट किया था, तो मैंने इंटरव्यू के पहले भी अपना कृष्ण नायक का वीडियो से रिवाइज किया था, तो वो बात अलग है, ठीक है? एक मतलब जिससे समझ आता है एक से ही करो ना, बेटर होगा, वरना कोई दूसरा अपने फ्लो में पढ़ाता है, दूसरा कोई अलग कोई और फ्लो में पढ़ाता है, तो तुम्हारी प्रॉब्लम होगा बाद में। एंड में जाएगा तो चैट जीपीटी से ही पूछा था सारा कुछ। हाँ वही तो आजकल कौन कोड करता है तुमको लगता है ना? ऐसा भी कोड नहीं एआई एआई तो जॉब ले ही लेगा, क्या ही चिंता। ठीक है, एनी मोर डाउट्स बताना यार। আচ্ছা সনেটু, বলো। একটা কাজ কর, অনেকজনই নতুন ইউজার হবে তো, তারা হয়তো জানে না তোরা যে হোমওয়ার্ক টাস্কটা দিয়েছিস সেটা করতে। হ্যাঁ সর্ব, হ্যাঁ দাঁড়া এক সেকেন্ড, সর্ব, ল্যাপটপ খুলে হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ ল্যাপটপে আসিস, হ্যাঁ একটা স্যাম্পল খোল না, ওই যে রেসপন্সটা আমাকে পাঠিয়েছিলি না, তো ওই রেসপন্সটা কপি করে ওখানে পেস্ট করে দেখা কেমন করে ওরা বুঝবে, মানে তার সাথে জাস্ট একবার প্লাস এটাও কর না, একবার কোল্যাবে এটা দেখিয়ে দে, মানে কোল্যাবটা অনেকজনটা কোল্যাবে করার দরকার নেই, কাউকে কোল্যাব শেখার দরকার নেই, সিম্পল কথা, বিএস করে হয়ে যাবে, এটা কিছু না, একটা করতে পারিস। ফাইল বানিয়ে এটা করা যেতে পারে। সর্বোচ্চ কি ভিএস কোডটা শেয়ার করে দেখাতে পারিস? কোডটা শেয়ার করে দিলে তো ওরা তো তাহলে নিজের মানে এফর্টটা দেবে না। কোড নয়, কোড নয়, মানে আমি কি স্যাম্পল বলতেছি? আউটপুট, হ্যাঁ স্যাম্পল ভ্যালিডেশনটা শেয়ার করছি। হ্যাঁ ঠিক আছে, হ্যাঁ শেয়ার করে দেখি যাবো, জাস্ট কেমন কি হবে। Is the screen visible? So this is what the website looks like. So you'll get an output like this that I've pasted over here. And if you click on validate, it will show that the response is valid. In case you get something different, for instance, if I change ID to ID2, and then if you try to validate, it will show what you're missing and why is it incorrect. This is a sample website test whether your response is correct or not. If you follow all the steps that are listed there on the slide, you'll be able to implement the script on your own. You can go through, you can use GPT, you can use Google to get the documentation for various functions and how API calling works in Python. And this is a sample script to test your code. Any questions from this part?
सिंपल लैंग्वेज में जीपीटी यूज कर सकते हो, तो समझ के करना, जो भी जीपीटी से कोड मिल रहा है खुद वो। से लिखना पड़ेगा ना, पाइथन हाँ कोड। हाँ, कोड खुद से लिखो, जीपीटी से लो, बट समझ के करना क्या हो रहा है। ऐसे तुम बिना समझ के करोगे तो नया कुछ इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि यह एक ऐसा फील्ड है जिसमें तुम यूट्यूब सर्च करोगे तो हजारों नया प्रोजेक्ट मिल जाएगा, पर वो अगर तुम अपना सीवी में दोगे तो शॉर्टलिस्ट ही नहीं होगा। ऐसा है, थिंग्स इज लाइक यू हैव टू थिंक यूनिक, पता होना चाहिए क्या चल रहा है बैकग्राउंड में, फिर खुद से इम्प्लीमेंट करो। इतना सारा तो आजकल तो सभी बोल रहे हैं जीपीटी यूज करता है। वैसे हैप्पी टीचर्स डे टू जीपीटी, वो तो बोलना था। और कोई डाउट है? और कोई डाउट रिलेटेड टू कोर एमएल भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। चालू करते हैं भैया करना, फिर आपसे पूछेंगे क्या करना है आगे। चालू पढ़ोगे? कंटेंट रिसोर्स देने के बाद भी बहुत डेडिकेटेड करेंगे स्टूडेंट्स करेंगे। देखिए आप भी लोग को डेडिकेशन तो दिखाना होगा। आपका डेडिकेशन था, पढ़ाया है, हम लोग को समझाया है। अच्छा, देखते देखते। ठीक है, चलो, कोई और डाउट नहीं है ना? एंड करते सेशन, मत एंड बस।